ऑन हो गई है जनाब, जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। जी जी। मैं कहा बोल, बाकी लोग अगर किसी को रेफरेंस के तौर पे चाहिए तो वापसी वो हाँ, देख लेना उसको वीडियो। रिकॉर्डिंग देख सकता है, बिल्कुल सही। सही है, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? जरूर। Please, Okay. बिस्मिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu to all of you. Dr. Mubin here. आज की जो मेरी टॉक है on revamping conventional learning. So basically there are a few ideas जो मैं community के साथ share करना चाह रहा हूँ. And this is something I want to develop as soon as possible because I feel now अभी this is about the right time to implement this. So to go beyond, the outline is as follows. थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊंगा. Then how the talk is organized, followed by the two topics जो मैं आज बात करूंगा, mathematical emergency और browser based visualization. मैंने इस पहले टॉपिक को मैथमेटिकल इमरजेंसी इसलिए नाम दिया है बिकॉज अभी जो मैं कन्वेंशनली देख भी रहा हूँ ना, जितना भी अभी ओवर द इयर्स, जितना टाइम मुझे यहाँ इंडस्ट्री में रहा है, सॉरी इंडस्ट्री में भी और एकेडेमिया में भी, मेन रीजन दैट आई फाइंड स्टूडेंट्स लैक इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथ्स. बहुत ही जो मेन फंडामेंटल इशू है ना, वो मैथ्स का है हर जगह. चाहे वो फिर आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और इनमें, लेकिन बेसिक मैथमेटिकल जो मॉडलिंग वाली पार्ट है ना, वो आपको चाहे वो बेसिक इक्वेशंस की हो या इवन एडवांस फॉर्म में वेक्टर मैथ्स, वेक्टर कैलकुलस की तरफ चले जाएं, वही फाउंडेशनल एलिमेंट्स जो है ना आगे आपको हॉन्ट करते रहता है अगर आपने सही तरह नहीं किए हुए, समझे भी नहीं हुए. तो उसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोर फर्दर इंशाल्लाह. फिर देन द सेकंड टॉपिक इज व्हाट आई वर्क ऑन, which is browser based visualization. मेरे रिसर्च एरिया है जिसमें मैं काम करता हूँ, and I want this to be sort of become the norm as far as visualization in browser based environments. तो इसकी applicability बहुत अच्छी है. I'm going to show that inshallah in a few minutes. Then what is the areas जिसमें मुझे I need some support, and then finally list of references. So before I start, a disclaimer that all the views that I'm presenting in this presentation are my own. They do not represent Habib University, which is my employer. So please don't quote as such. It's nothing to do with Habib University. This is all my own initiative. So a little bit about myself. I did my PhD from NTU Singapore in 2012. Then I headed to Institute for Infocom Research, which is a division of A-Star Singapore, where I did my postdoc almost 1.5 years. I have around 2 books, 3 book chapters, 9 journals, and 10 conferences. Details are as follows. Below is a list of all these books, and on the right are their title pages. There are a few books in here which are my own. For example, this OpenGL Development Cookbook and OpenGL Build High Performance Graphics. ये दोनों मेरी किताबें हैं. बाकी किताबों में मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है एज अ कंट्रीब्यूटर. एक आध चैप्टर है इसके अंदर, and then there are some जिसको मैंने रिव्यू किया, जैसे OpenGL Shading Lab कुछ बुक like the state of the art book in OpenGL Shading, OpenGL rendering. तो उसके I was the reviewer. So alhamdulillah, I've been contributing regularly in all these computer graphics venues. So the organization is as follows. We have got to discuss two things. The first is mathematical emergency. Second is browser-based visualization. So the first topic is on how to improve basic maths and physics, how to improve the understanding and learning of students. ये basic core है जिसको पर I'm going to talk about further. The second topic is browser-based visualization, जिसमें I'm going to talk about how you can use modern WebGL, which is WebGL 2.0, to create really intuitive and interesting 3D visualization tools inside a web browser. So this is a very powerful mechanism. Why? Because you can use it. You can use your algorithms to be platform agnostic because it's running in a web browser. It can run on any smartphone, tablet, or a desktop or laptop, whatever you have, whatever computing platform you have. You can implement these algorithms on the browser. So you don't have to install anything. Everything is just live. You can just directly run it. So it's a very powerful and intuitive way. So I'm going to talk more about it inshallah later. So the first topic is mathematical emergency. So I'm being part of like education system for almost like 6 years or so. The main reason that I feel that there is a lack of understanding or lack of quality in our software products and projects is lack of understanding of mathematics. So students know how to solve a problem, but they don't understand what's going on behind the scenes. तो अब क्योंकि ये knowledge नहीं है कि how the whole thing is, why the math is working and what's the reason behind it, इस वजह से they can't understand the problem fully and they cannot model it fully, and then because it's not modeled properly, you're not going to get good results. ठीक है, स्टूडेंट्स हर लेवल पे, चाहे इट्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हर लेवल पे आई कैन सॉर्ट ऑफ दिस लाइक अ डिस्क्लेमर बाय द वे. आई एम जस्ट from what I've seen over the years, I'm just projecting onto this.
So it's not like a hard and fast thing that I'm saying कि जी सब level पे ऐसे हो सकता है कहीं पे outliers हो, but most of the cases, majority of the cases में students are not able to model real world problems mathematically. अगर आप किसी भी student को, मैं मतलब undergrad के बच्चे को भी किसी को उठा के आप बोले उसको बोल रहे कि जी कोई कोई भी आप existing system आप हो, मिसाल के तौर पे आप जैसे ऊपर से रेट ऑफ फ्लो आपको पता है कि जी इतनी देर में टैंक जो आपका खत्म हो जाता है, अब बच्चे को बोले इसकी इक्वेशन बना दे, कोई भी नहीं बना सकेगा। तो ये दिस इज लाइक अ वेरी बिग प्रॉब्लम मॉडल करना भी, फिर कौन सा एल्गोरिथम या कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज होंगे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है, वीक है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। So that's why I say that it's a serious issue. It must be addressed at the national level. By the way, I wrote this proposal for the Prime Minister's task force. उनके लिए मैंने लिखा था. I prepared a detailed document when I was there in DSU, but it was not forwarded for some reason. पता नहीं क्या हुआ, वो गायब ही हो गया एकदम से. So then I said कि जी खुद से फिर मैं कर लेता हूँ. I don't really need help. I can sort of seek support from Founder Alliance or other similar groups. So that's why I call this a mathematical emergency. And then the idea that I have is that we can develop a suite of applications, can be smartphone, tablet, desktops, and web pages. Like immersive algebra, I'm going to show you in a minute. And then we can use modern tools like computable document format, CDF, which is like a cousin, you can say it's a remote cousin of PDF. It's actually developed by Wolfram. So what CDF does is actually gives life in your documents. So I'm going to show you what I mean by life in your documents. So the idea is that students will be able to figure out and comprehend maths, right? And they will be able to understand what's going on behind the scenes. So to tell you all, let me share what I mean. Let me share my screen to show you what I mean by these. So I'm going to show you first immersive and linear algebra. This is what I'm talking about. I hope all of you can see. So this book is live. You can actually edit all the figures. Even the title figure can be edited. You can see it. You can move around. You can move the camera. You can see how the equation will behave over this name. So this actually is a projection example where our triangle is being projected on a plane. So you can see, you can edit and you can interact with the model, with the figures. So let me show you the vectors chapter. So when you click on the vectors chapter, it's going to show you a game. It's actually a simple game, which is, you can see it's quite intuitive in the sense that you can allow students to interact with the book, and you can use the keyboard to move the content around. So it's actually, remember, this is a book, by the way. It's not a game that you're running on a smartphone. So it's inside the book. They have actually created these simple components, so it makes easier for students to understand what's going on. तो अब बजाय इसके कि आप बच्चों को बैठ के इक्वेशनें बता रहे हैं कि जी कोलिजन की ये होता है तो कोलिजन में ये होता है, वो सारी चीजें आप इन छोटे छोटे अंदर इसके अंदर एम्बेडेड कंपोनेंट्स के थ्रू बता सकते हैं. तो जस्ट टू शो यू, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये पूरा बड़ा कंप्लीट गेम बना हुआ है. फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टीज बताना शुरू करते हैं वेक्टर्स की. So you can actually edit all these figures. You can, if you look through, hold a second. It's actually showing you how the whole things are like. अगर आप दो वेक्टर्स को कहते हैं सिमिलर हैं तो they can be displaced anywhere. So वो सारी चीजें visually दिख रही हैं. You can actually displace a vector around. ये देखिए सारे points बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ आप move कर सकते हैं and so on. So if you can displace the vector anywhere, it remains the same vector. वो सारी चीजें जो आप verbally words में लिखे होते हो बच्चों को समझ आए ना आए, it's much more easier and much more intuitive to display everything in this browser application. So similarly, length का बताना हो scalar के साथ negative number से multiply करें तो it will be reverse. So ये सारी चीजें देखें, it's all visual. तो अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी अगर हम स्टूडेंट्स को इस तरह की टूल्स से समझाएं. और करंट सिनारियो में जब वी आर इन सॉर्ट ऑफ अ लॉकडाउन जिसमें कोविड के अंदर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एंगेज विद द फैकल्टी, विद द टीचर्स, आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट टूल वी कैन गिव देम. जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों की. राइट, सो ये वेक्टर एडिशन का बताया. फिर ये अब दूसरी एग्जांपल है व्हिच इज एक्चुअली शोइंग हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस. और यू कैन एक्चुअली रोटेट अराउंड. अब देखें आप रोटेट करके सारे वेक्टर्स देख सकते हैं. So it's all hosted in a browser. You don't have to use anything. Even it runs on the smartphone directly. So ये पूरी चीज intuitively बनी हुई है. Very nicely explains everything, all the concepts of vector maths. अब ये scaling का बता रहे हैं. ये scaling के देखें पूरी चीजें, सब चीजें demonstrate करके बताई जा रही हैं in the form of animation, and these are like editable animations.
ऑलराइट, मूविंग ऑन. सो इट्स अ कंप्लीट बुक बाय द वे. पूरा उन्होंने बताई हुई है सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी को आप इसमें विजुअली देख सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन. तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी यूजिंग दीज टूल्स. वो जो हम पैरेललोग्राम के और वो जो सारे रूल्स हम देखते थे वो सारे इसमें बने हुए. यू कैन एक्चुअली यूज राइट माउस टू इंटरेक्ट. सो ऑल दीज फिगर्स आर लाइव. अब देखिए के की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. देखिए के की लेंथ, वो लेंथ कंट्रोल कर रहा है. नेगेटिव करेंगे तो रिवर्स फैक्टर बन जाएगा एंड सो ऑन. सो ऑल दिस चीज आर लाइक वेरी इंट्यूटिव फॉर एनी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. फिर so it's a very detailed, I recommend all of you to actually go and check this out. Immersive linear math बहुत ही अच्छी जबरदस्त इसे एक इनकी कोशिश है. वन ऑफ द पायनियर्स इन, आई शुड से, इन वेक्टर मैथ्स. ये लोग जो ऑथर्स हैं एंगस्ट्रॉम और ये जो हैं अकेनन मॉलर इज कंप्यूटर ग्राफिक्स पायनियर. तो ये कंट्रोल के बाय द वे जे स्ट्रॉम एंड स्ट्रॉम ये दोनों कंट्रोल्स के लोग हैं. तो यू कैन सी ऑल दीज चैप्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट्स, गॉसियन एलिमिनेशन, जो चीजें जिनसे हम लोग घबराते थे ये सारी उनकी एनिमेटेड लाइव फिगर्स हैं इसके अंदर. तो यू कैन अंडरस्टैंड पीछे कि क्या हो रहा होगा, उस प्रॉपर्टी से क्या चीज कंट्रोल होगी. सो दिस इज वन वे दैट आई टॉक्ड अबाउट कि यूजिंग दिस इमर्सिव मैथ या इस तरह के हम एप्लेट्स बना लें using using WebGL inside the JavaScript environment in a web-based browser-based components. और जो second point है वो है through CDF. So let me show you. आपको मैं दिखाता हूँ. Let me go back to my slides. So फिर मैं वहाँ से उधर आता हूँ. अच्छा, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन मुबीन साहब? जी बोले. हाँ देखिए, डेमो तो दिखा दिया आपने और ये आप बहुत जल्दी जल्दी चला रहे हैं, तो हमें तो चलाना भी नहीं आता. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बुक या इस तरह से बनाने के बाद शायद जो मैथ्स के टीचर हैं उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी ट्रेनिंग देनी होगी, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ये बुक पढ़ानी किस तरह से. बात सही अच्छा, है? इस हाँ बिल्कुल ठीक है. बेसिक ओवरव्यू के 1 या 2 सेशन लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सब चीजें अच्छा, जितनी भी है ना वो सारे इसमें आप देखें ना. मैं आई वेंट अ बिट टू क्विकली. मैं दोबारा दिखाता हूँ. इसमें हर जगह ना इंस्ट्रक्शंस दी हुई है. जैसे आप देखें यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट से क्या होगा, ये सब बताया हुआ है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद नीचे जब आ रहे हैं ना तो यहाँ देखें फॉरवर्ड और रिवर्स, ये रीसेट, ये 2 ऑप्शन हर हर इसमें देखें नीचे दिए हुए हैं. सही तो सही. आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फॉरवर्ड दबाना है, तो ये आपको एक एक करके एनिमेशन दिखाता रहेगा. ये देखें. ठीक ठीक है. है. तो रादर देन कि आप जैसे स्टैटिक फिगर्स होती है ना बुक के अंदर, आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि ये फैक्टर किस स्पेस की बात कर रहा है, किस डायमेंशन में बात कर रहा है. अब वो तो एंड डायमेंशन में प्रोजेक्ट हो सकता है ना. तो इसमें वो चीज काफी क्लियरली समझ आ जाती है कि आप कहते हैं ना 2 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, तो आप उसको रोटेट करके देख सकते हो किस प्लेन की बात हो रही है. ठीक है. तो मेरे ख्याल सही. में रादर देन यूजिंग अ सिंपल बुक, ये ज्यादा इंट्यूटिव है, ज्यादा अच्छा समझ आएगा लोगों को अगर वो इससे पढ़ेंगे तो. इसमें हर डायग्राम, एवरी फिगर इज लाइक इंटरेक्टिव. ठीक है. फिर ये प्रॉपर ये जो इनके वैल्यूज हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसका आप रिस्पांस डायरेक्टली दे सकते हैं किससे क्या फर्क पड़ेगा. अच्छा, अभी तक आपको क्या चैलेंज पेश है? आपने किसी को इनकरेज देखिए किया ये इस तरह से पढ़ाने पर, मैथ्स के टीचर्स अभी को? तक आ, मैंने लोगों को बताया तो है, लेकिन वही होता है ना, जो एक चीज स्ट्रीम में लोग चल रहे होते हैं ना, उनको उस स्ट्रीम से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है. जो एक ठीक कन्वेंशनल है. एक चीज बनी हुई है ना, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी मेहनत बहुत तो करनी मेहनत पड़ेगी. करनी पड़ेगी. तो अब वो मेहनत से लोग कतराते हैं कि यार मतलब वही चीज चल तो रही है, तो इसमें क्या मसला है, मैं वही चलाऊं ना जो चल रहा है. तो वो अपने सही. नोट्स ही चला रहे हैं. मसला ये सही है है. कि वो चीज चेंज करने की जरूरत है अब. नाउ इट्स अबाउट टाइम कि वी अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द आवर. क्योंकि ठीक ये है. वो चीज है कि जिसके लिए बच्चों को आपने सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि एक आपको एक डायरेक्शन देनी है. तो यू कैन गिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये बहुत अच्छी इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है जो जो लोग बता रहे हैं ये सब. अब देखें हर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्ड जो है ना इन्होंने दी है एक्सप्लेनेशन. जो ऐसे वो भी है इसमें कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्मली इतना आराम से समझ नहीं आते. ठीक है. तो वो सारी चीजें, बेसिस वेक्टर का कॉन्सेप्ट वगैरह सब बहुत अच्छा बताया इसके अंदर. ठीक है. तो चलिए, जो अभी हम प्रेजेंटेशन के बाद उस पर बात करेंगे कि कैसे जी चेंज जी जी लाएंगे. जी 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 चलिए, नौरीन नजर आ रही है. ये नौरीन, वेलकम मैं करेंगे नौरीन को हम. जी जी ये मैथ्स का है ना, सिर्फ ये इस तरह की किताबें हर सब्जेक्ट पे बनी बनाई हैं. जैसे हम लोग आईटी के सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, जी उसके अंदर भी अगर आप जैसे सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारे टूल्स पहले से ही होते हैं. जी 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 या हर सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे फॉर एग्जांपल इसकी अलग किताबें होंगी. जी ये तो वेक्टर्स की है. मैथ्स में जी इस जी तरह से बहुत सारे और होंगे. सिमल्टेनियस इक्वेशन है, ग्राफ्स जी हैं. जी जी जी
वो न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग जो है उसकी इसके ऊपर है वो चीजें। बस मेरा पॉइंट ये था बताने का कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जो जूनियर लेवल की जो एजुकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो पुरानी ही चल रहा है अभी। वो सारा इंटरमीडिएट कब देख लें वही कंटेंट है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाँ। व्हाट आई फील इज कि उसको इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ये एक टीचर हूँ मैं, अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरा जी सवाल है, मैं छठी क्लास को पढ़ाता हूँ, जी साइंस पढ़ाता हूँ, जी सिक्स क्लास को। जी जी उस मुझे इसमें, ये तो किताब किसी ने बना दी है ना, बनी हुई जी है। जी जी। मुझे ये किताब, मुझे मेरे लिए कोई किताब है बनी हुई ऐसी, फ्री अवेलेबल है जो मैं यूज कर सकूं, देखें या मुझे अभी अपनी किताब खुद बनानी है, जैसे आप कह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि जी आपको बड़े अभी आसानी से आप बना सकते हैं। जी अभी बनानी पड़ेगी, अभी कोई बनी भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो मैंने तो नहीं देखी अभी तक। हमारे कंटेंट की तो मुझे इवन सॉफ्ट कॉपीज भी नहीं मिली, हमारी जो सिंटेक्स बोर्ड की जो किताब है ना। आई एम नॉट हाँ। श्योर कि हाउ मतलब विल इट बी। मुझे उधर इंडिया की तमिल उसकी बुक मिली है ऑल्टरनेट उनकी, जो वो वही हमारा कंटेंट है, मैंने देखा तो एग्जैक्टली वही कंटेंट है। तो आई एम यूजिंग दैट। अभी मेरे पास दिखा भी था आप लोगों को, जो मैंने सर्च किया था उसमें मुझे आई वुड नॉट एबल टू फाइंड द रेलेवेंट कंटेंट। उसमें से मुझे वो मिले हैं हमारे इसके जो है ना सॉल्व प्रॉब्लम्स ही मिले हैं ऑनलाइन। तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी नहीं मिली मुझे इंटर की किताब की। तो मैं इट्स अ बिग चैलेंज। हाँ, यानी इसका मटेरियल जैसे बनाना पड़ेगा, जो जी कि इंटरैक्टिव मटेरियल है, टीचर को बनाना पड़ेगा। और जी। टीचर जाहिर है उसके पास टाइम ही नहीं है, ना टाइम उसके नहीं है। पास इंक्लिनेशन है, ना जी उसके जी पास टेक्निकल नॉलेज है जो आपके पास है। जी तो इसका मतलब ये कि कोई टेक्निकल टीम हो जो कि उसके साथ बैठे जी और जी कहे, अच्छा जी भाई तुम्हें ये पढ़ाते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो मैं जी तुम्हारा इसका एनिमेशन बना के देता हूँ। जी। इस मतलब तरह की एक चीज एक करनी होगी। इंटरेक्टिव एनिमेशन नहीं, इंटरेक्टिव बुक का बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर सारी फिगर्स जितनी भी चीजें मैंने अभी दिखाई भी दी आपको, ये सिर्फ एक एक कंपोनेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी उन्होंने चीजें की हुई है। मैंने ये दिखाया जैसे 10 चैप्टर उन्होंने बनाया हुआ पूरे इस बुक के। तो ये एक डायरेक्शन थी एक तरफ जाने के। मैं अगर आपको स्लाइड पे दिखा सकूं दोबारा, आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू माय स्लाइड्स, ताकि मैं कैन जस्ट कंटिन्यू कि मैं बताना क्या चाह रहा था। दो मेरे हिसाब से थे इसके तरीके हैंडल करने के। एक है थ्रू वेबसाइट्स, जिसको कि अभी मैंने दिखाया इमर्सिव मैथ, जिसमें कि इंटायर बुक कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउजर बेस्ड टूल, जिसमें ये होता है कि इंटायर फिगर्स इन द होल बुक आर इंटरेक्टिव। सो इट्स मच मोर इंट्यूटिव फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज है वो है टू वर्क विद मैथमेटिका इन स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं सीडीएफ। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ सीडीएफ। मैं आपको एक दिखाता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने ओपन की हुई है। आ गई, हाँ जी। अब आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी, ये आपको नजर आ रही है। जी। अच्छा, ये कैलकुलस की किताब है बाय ब्रिक्स ब्रिक्स कॉकरन गिलेट एंड शुल्ट्ज, इनकी पियर्सन प्रेस की ये किताब है, जिसमें आप ये कि जितनी भी फिगर्स है ना दे आर ऑल इंटरेक्टिव। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्लोप की डेफिनेशन बताई गई है। इफ यू प्रेस द प्ले बटन तो द होल इमेज, इसमें पूरा स्लोप की वैल्यूज कैसे वेरी करी वो दिखा रहा है आपको। तो ये पूरी चीजें दिस इज ऑल लाइक कि आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम फिगर्स आर इंटरेक्टिव। तो बिहेवियर देखने के लिए ना क्या वो प्रॉपर्टी क्या कंट्रोल कर रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी है ट्रजेक्टरी, अगर आप चेंज कर लो तो हाउ डज द टेंजेंट वेरी अक्रॉस द पाथ ऑफ द कर्व, वो सारी चीज। अब आपको ये पूरी चीजों की ना सिर्फ ये सिंपल एग्जांपल्स हमने बताई हुई है, पूरी पूरी जो हाई डायमेंशनल जो इमेजेस है वो सारी हर चीज इंटरेक्टिव है, जो वैल्यूज है जो वेरिएबल्स है। तो हम इस तरह की चीजें, ये पूरी चीज हम इंटरेक्टिवली बना सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स। अब इसमें मैथमेटिका की लैंग्वेज यूज होती है, वुल्फ्राम मैथमेटिका की, वो आप लिख दें और फिर फिगर्स बनाने का भी उसमें जिस तरह मैटलब में किसी ने काम किया हो, तो वही मोरलेस उनका सिंटेक्स है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी आप वेरिएबल यूज करते हो उसका ये स्लाइडर बना देता है खुद ही से। तो ये बहुत अच्छी से नाइस से आपके पास फिगर बनी होगी अब, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें एडिटेबल होंगी, जो भी वेरिएबल आप एक्सपोज करना चाहें। देखो वो बताने के लिए कि एज यू ब्रिंग एक्स क्लोज टू जीरो इट टेंड्स टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व, वही वाली चीज बताने के लिए देखें। तो आप इसको स्लाइडर को ड्रैग करके पूरा बिहेवियर समझ सकते हो तमाम चीजों का। तो रादर देन के जो जिस चीज से हम लोग घबराते थे, जो चीज हमें समझने आने में मुश्किल होती थी, वो आप इंट्यूटिवली इसमें कर सकते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल चैप्टर है जो कि वुल्फ्राम की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सो ऑल इफ यू कैन ट्राई दिस, तो ये आप इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करके देख सकते हैं।
how does the equation behave, how does the figure change, how does the what is the properties that this equation is capturing. तो वो सारी चीजें आप इंटरेक्टिवली में देख सकते हैं. तो ये पूरी एग्जांपल्स सब ये फिगर्स जितनी भी दे आर ऑल इंटरेक्टिव. तो पॉइंट इज के रादर देन एक कैलकुलस की आप किताब खोलें जिसको आप वैसे ही घबरा जाते थे देख के, इसमें वो सारी चीजें इंटरेक्टिवली फिगर्स के फॉर्म में दी हुई हैं. तो आप उसमें पूरा बिहेवियर देख सकते हैं पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन का. तो दिस इज हाउ दे एक्चुअली यूजिंग इट. पियर्सन एक्चुअली अभी पब्लिश भी कर रहा है इसको अंदर सीडीएफ के फॉर्म में, पूरी पूरी कैलकुलस की या पूरी पूरी किताबें उन्होंने कन्वर्ट कर दी है. तो what I was suggesting was कि we should also adapt these for our inter and lower level जो हमारे primary level है उसके ऊपर ये चीजें बनाने की जरूरत है. We should make these so that हमारे बच्चों को भी ये चीजें सामने हो. वो चीजों को अब इनके लिए आपको सिर्फ सीडीएफ प्लेयर चाहिए. यू नीड जस्ट सीडीएफ प्लेयर जो कि डाउनलोडेबल है. वो स्मार्टफोन्स के लिए भी अवेलेबल है, टैबलेट्स के लिए भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप लैपटॉप सबके लिए मौजूद है. मैं भी जो चला रहा हूँ ये सिंपल सीडीएफ प्लेयर है जो कि विंडोज के लिए डाउनलोडेबल है. यू कैन डाउनलोड. थोड़ी सी एमबी की और फाइलें बहुत छोटी छोटी होती हैं क्योंकि इसमें सिंपल एक कोड ही लिखा होता है. देखिए कैलकुलस की किताब है 753 केबीज की है ये पूरी. ठीक है. इसी तरह बहुत सारे और भी हैं. इसमें पूरी पूरी प्रेजेंटेशन लोगों ने बनाई हुई हैं. अगर अब मैं ये दूसरी चीज दिखा रहा हूँ, नॉट श्योर वेदर यू कैन सी. लेट मी सी अगर आप लोग को नजर आ रही है. ये दूसरी एक एग्जांपल है. ये देखें ये एक उसके ऑयल स्पिल के ऊपर उन्होंने बनाई थी. ये पूरी इसमें एनालिसिस और सारी चीजें वो दिखा रहे हैं यूजिंग. एक सेकंड मैं डायनामिक्स इनेबल कर दूं. ये पूरा इसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो आपकी काफी इंट्यूटिव काफी अच्छी बनती है इस पे. तो स्ट्रेस के लिए आप एक्चुअली चेंज करके देख सकते हैं कि हाउ वाज व्हाट वाज द इफेक्ट एंड ऑल. तो सारी फिगर्स एवरीथिंग इंटरेक्टिव. ये थ्रेशोल्डिंग आपको करके दिखा रहा है कि स्पिल कितने एरिया तक गया था ये ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर. just to give you some examples of it. So coming back, let me share my presentation again. So I hope इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को कि what I'm talking about, CDF का भी और ये immersive math का भी. So moving on. So now I come to the second topic. पहला part जैसे मैंने बताया that was for the mathematical emergency जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसमें कि I'm looking for how we can revamp the existing tools जो कि हमारी books वगैरह है उनको इस form में either CDF या browser based हम बनाएं जिस तरह linear algebra immersive math में बनाया हुआ. तो it will be easier for students to learn and understand mathematics. क्वेश्चन है शायद नौरीन का. नौरीन कुछ सवाल करना चाह रही है. Go ahead please. नौरीन अपने आप को अनम्यूट करेंगे? अच्छा मैं अनम्यूट कर देता हूँ. चलिए जी नौरीन आप बोल सकते हैं. जी आवाज आ रही है सर? जी जी वालेकुम सलाम. अच्छा सर, the tools that you showed or the presentation is very impressive. बस मेरा सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगी सर. जब भी हम मतलब although के interactive learning is gaining pace और बच्चों के साथ ज्यादा बच्चे उसको understand करते हैं और respond करते हैं, but तो मुझे जो लगता है कि हम जो है और खासतौर पे जो आपने बताया मैथ्स के सब्जेक्ट जो इतने ड्राई होते हैं, so उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है सर मेरे ख्याल से वो ये होती है कि हमें जो है एज अ स्टूडेंट ये नहीं बताया जाता कि ये फॉर्मूला ये वेक्टर हम कहाँ यूज करेंगे, मतलब एग्जाम्पल नहीं दी जाती है. ठीक है राइट. मतलब दैट्स आई थिंक दैट्स द कोर की जो सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग बना देता है जी. क्योंकि जब आपको ये नहीं समझ आता कि ये a+b होल स्क्वायर आप यूज जिंदगी में कहाँ करेंगे. ठीक है. सो दैट्स आई थिंक कि जब हम ये विजुअलाइजेशन और इस टाइप की बातें करते हैं तो हमें ये भी बताना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट एक एग्जांपल ऐसा हो रियल लाइफ का कि आप जो है वो मैप कर सकें कि अच्छा अगर आपको रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल मेजरिंग का प्रॉब्लम है तो आप इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं. इस सरफेस अगर आपको बताना है. अच्छा इसका थैंक यू सो मच नौरीन फॉर योर कमेंट. इसका मैं जवाब देना चाहूंगा. अच्छा हो सकता है इससे कुछ लोग जो है नाराज हो जाए मेरे कोलीग्स वगैरह. वो ये है कि जो हमारे जो मैंने देखा है इट माइट, मैं ये अगेन दोबारा बता दूं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फैकल्टी और या सारी लोग ऐसे नहीं होंगे. इट माइट बी, लेकिन मेजॉरिटी जो मैंने देखा है मैथमेटिक्स की जो फैकल्टी इन पर्टिकुलर वो लोग हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैथ्स.
तो आपको जो चीज आप कह रहे हैं ना कि अप्लाइड चीज है, बताएं कि ये चीज कहाँ अप्लाई करिए, कैसे बताएगा जब उसने खुद किया नहीं कभी। तो दिस इज द मेन रीजन कि जो प्रैक्टिशनर है ना वो आना नहीं, वो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, वो काम ही कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इट। बट what you need is people who can understand maths, who can apply maths and actually applying maths in their projects. ये इशू है कि जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए तो फिर जबरदस्त बनेगी, फिर आपके स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे, खुद आपकी मैथ्स भी अलग हो जाएगी, टोटली अलग हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग पूरी। तो मेन मसला ये है कि जो जो मेजर फैकल्टी हमारे पास है ना मैथ्स की, वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाती है, वो और कुछ नहीं करती, वो अप्लाई नहीं करते इन चीजों को कि दे कैन एक्चुअली डेवलप प्रोडक्ट्स या इस तरह के टूल्स में। एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन, मेरे जितना भी इंटरेक्शन हुई है मैंने नहीं देखे अभी तक। देयर माइट बी फ्यू जो कि कर रहे होंगे, लेकिन मेजरली मैंने देखा है कि दे आर ओनली टीचिंग मैथ्स। तो ये है कि जब तक वो अप्लाइड चीज पे काम खुद नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक वो बच्चों को क्लियरली समझा सकेंगे कि ये चीज कहाँ अप्लाई होती है। अच्छा मुबीन साहब, ये इशू तो सीएस में भी है, सीएस के हर सब्जेक्ट जगह पढ़ा रहे हैं, कभी प्रैक्टिस तो की नहीं है, कभी सॉफ्टवेयर हाउस में तो ऐसा ही, काम किया नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है इसको मेजरली। मैथ्स मैथ्स में इन पर्टिकुलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स तो हर जगह कहीं ना कहीं हर किसी का वास्ता पढ़ना है मैथ्स है। सही सही है, है। चलिए आपकी प्रेजेंटेशन के बाद बात हाँ जी, हाँ करेंगे जी। कि पॉन्डर हाँ हाँ लाइंस मैं कैसे पार्ट प्ले करेगा चेंज करने में। जी 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 ठीक है, जी अभी चलिए। वो उन्होंने सवाल पूछा तो मैं उसको जवाब दे रहा था, आई एम सही सॉरी कि है, उसको नहीं नहीं सही कोई है, बात नहीं। ठीक है। तो चले, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ब्राउजर बेस्ड विजुअलाइजेशन। दिस इज अनदर थिंग दैट आई लाइक, दिस इज माय करंट रिसर्च एरिया जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। So in most medical conditions, doctors propose in-depth examinations through CT MRI. अल्लाह ना करे किसी को कोई कंडीशन होती है मेडिकल की, देखा होगा आपने, पहले एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे के बाद कहते हैं सीटी करा लो, सीटी के बाद कहते हैं एमआरआई करा लो। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इंटरनली, क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। तो जनरली बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ पे भी कुछ बड़े मेडिकल जो है उनके पास डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है जिसमें दे शो यू ट्रांसफर सीरीज ऑफ स्लाइसेस। उनके पास एप्लीकेशन है जिसमें स्लाइडर के ऊपर आप यू कैन मूव अराउंड एंड यू कैन सी ऑल द स्लाइसेस, और उसमें वो फिर स्पेसिफिक दे सकते हैं। जनरली स्टैंडर्ड जिसमें डायकॉम का यूज होता है, सही है। तो उसमें यू कैन एक्चुअली सी स्लाइसेस वन आफ्टर द अदर, टॉप डाउन व्यू मिलता है आपको, और कोई व्यू नहीं मिलता। ठीक है, तो इट बिकम डिफिकल्ट एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। ओरिएंटेशन में जो ना प्रॉब्लम होती है कि भाई ये स्ट्रक्चर आगे है, राइट पे, लेफ्ट पे, किस तरफ है, उसमें और फिर कितना प्रोजेक्ट करेगा वो समझ जाना, क्योंकि वो अक्रॉस स्लाइसेस वेरी कर रहा होता है स्ट्रक्चर। तो वो चीजें परसीव करना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली इन करंट सिनेरियो जब कोविड के अंदर इट इज बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर अस टू हैव एक्सेस टू पेशेंट्स। इस वजह से, क्योंकि यू कांट एक्सेस पेशेंट्स डायरेक्टली, आपने अल्लाह ना करे किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। So what I feel now is that we need to develop these sort of online visualization tools so that doctors can actually visualize these specimens directly without needing to go and visit the particular patient, या patient going to visit a particular doctor and so on. So the idea is that we can actually develop these remote visualization capabilities in browser. अच्छा, ब्राउजर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे डिप्लॉयबिलिटी बड़ी आसान हो जाती है। इट बिकम्स रियली इजी फॉर अस टू डिप्लॉय। फॉर एग्जांपल द सेम कोड मोर और लेस वर्क्स ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स, क्योंकि इतनी myriad ऑफ डिवाइसेस हमारे पास, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, हर एक के लिए फाइन ट्यून करना इट विल बी अ नाइटमेयर। सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड इज वी कैन वर्क ऑन WebGL, ब्राउजर बेस्ड रेंडरिंग करें यूजिंग WebGL 2.0। इसमें काफी चीजें नई इंप्रूव हो गई हैं, और उसको यूज करते हुए वी कैन क्रिएट रियली इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन टूल्स। ठीक है, so the benefit is a lot. इसमें सबसे पहला जो benefit है, it will be quicker, it will make it quicker for doctors to diagnose an ailment. फिर doctors actually collaborate by sort of sharing their notes, और उनको data sets के साथ वो अपने notes वगैरह बता के कि भाई इस चीज के अंदर मुझे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो बेसिक दे कैन annotate and then display के जी किसी और यूजर के लिए, लर्निंग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इट कैन बी यूज फॉर लर्निंग ऑल्सो, के दे कैन एक्चुअली टीच न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल केसेस के ऊपर ही पढ़ाई जाती है। तो दे कैन यूज दी CT MRI स्कैन्स एज अ वंडरफुल टूल टू डिस्प्ले या लर्न, समझाने के लिए कि कौन कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस एलिमेंट में क्या होता है, एंड सो ऑन। एंड देन इट कैन आल्सो हेल्प अस इन क्रिएटिंग डाटा सेट्स, जिसको कि फर्दर हम लेटर डाउन द लाइन वी कैन यूज दिस टू डेवलप आवर ओन डीप लर्निंग मॉडल्स, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ दी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज हैपेंस। ठीक है, so to give you some example, छोटा सा एक proof of concept मैं दिखाने लगा, I'm going to show you in this is like a live thing that I'm going to show you. Let me allow me to please share my screen. So now I'm going to share you this screen. All of you should be able to see my browser window.
if I'm not mistaken. Can all of you see my browser window? अभी Yes. सबको दिख रही है? एडिट हो रही है? मैं रोटेट कर रहा हूँ, हो रहा है? जी जी, हो रही है, नजर आ रही है. Okay, so this actually is a CT MRI scan is available in the public domain, by the way. तो अब ये पूरी real time render हो रहा है on the GPU and it's using WebGL to render it. Left side पे जो component ये भी सारा entirely everything is JavaScript, by the way. राइट साइड पे यहाँ पे कलर मैप्स है. आई कैन एक्चुअली चेंज देम टू एनीवन आई वांट. तो ये इसके ऊपर कलर्स लगा के यू कैन एक्चुअली सी हाउ द स्ट्रक्चर्स आर इंटरनली. फिर जिसकी विजिबिलिटी कंट्रोल करनी है तो यू कैन चेंज इट. यहाँ पे एडिटर में आके आई कैन एक्चुअली एडिट ऑल द इंटेंसिटीज लाइक दिस. तो आप देखें जो भी स्ट्रक्चर मुझे देखना हो आई कैन एक्चुअली मेक दिस. ऊपर से नीचे जो एक्सेस है ये ट्रांसपेरेंसी का है. तो वो डेंसिटीज लेफ्ट टू राइट ये डेंसिटीज है. ठीक है. वाई एक्सिस पे ओपेसिटी है. So you can actually move to actually show which particular intensity you want to see. और particular nodes को अगर आपको color करना हो ताकि आप कहते हैं कि ये different color में आपको bone नजर आ जाए, for example red color में and so on. So you can actually edit it and you can see it live. ठीक है. So फिर यहाँ पे मज़ीद options दिए हुए हैं. I'm going a bit too quick here because I'm noticing quite a few questions will come up. So let me just show you some of the things. So this actually is currently the state of the art in browser-based visualization. Our team is working on this. हमारा जो research group is actually pioneering in this area. So I'm going to extend this work further. लेकिन इसमें I need to have some sort of support, जो कि मैं अभी बताने लगा हूँ. So this is what I'm talking about. Entirely everything rendered in a browser window. You don't have to install anything. You just have to visit a particular website, and everything renders using client-side JavaScript. ठीक है. So this is what I was talking about. Right. So let me come back to my presentation. So it's like a proof of concept. Simple सी चीज बनाई हुई है. We can extend it. इसमें और भी elements डालने हो, surface rendering डालनी हो, या higher order, higher कहना चाहिए advanced algorithm चाहिए rendering के, we can add those into it also. So coming back to my slides again. Okay. So now the need that I'm talking about support, mathematical emergency case में तो I'll have to, because I'm going to sort of use or start up as intermediate as the baseline first, क्योंकि ये था ज़हन में कि intermediate की maths physics वगैरह इनको जो है we need to convert, और then help in deployment, development and testing part जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी. Second part is browser-based visualization. इसमें I need to have some doctors on board to actually discuss further on what is the kind of things that they want to be developed further, and then maybe probably look at extensions and adoptions. So these are the two things that I need support in. That's about it for my talk. I think if you have any questions, feel free to ask. जी हुमायूं साहब. पहले मैंने उसके थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव. ये जो आपने अभी डायग्राम दिखाया था जिसमें आप डॉक्टर की हेल्प चाह रहे हैं, ये इस वक्त जो आप कह रहे हैं किसी भी ब्राउजर में आप देख सकते हैं, तो क्या एक तो ये कि अगर फर्ज करें मेरा मोबाइल पे ब्राउजर है उस पे भी हो सकता है जी, या मेरे लैपटॉप पे है? अच्छा, अब मुझे ये जो डेटा है ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये जो इसकी इमेजेस हैं, इसका डेटा कहाँ है? देखें ये जो है किसी साइट पे पड़ा हुआ है. हाँ, ये आप अभी तो ये सारा मैं लोकली रखा हुआ है सारा. ठीक है. आपको ये किसी न किसी वेबसाइट पे होस्ट करो कहीं पे भी जहाँ पे अपने सर्वर पे आपने डाटा रखा हुआ है. अब ये रॉ डाटा है, रॉ फाइल्स पड़ी हुई है जिसके अंदर की ये पूरा सीटी स्कैन पड़ा हुआ है. ठीक है. अब आइडिया वाज कि इसको हम कहीं पे मतलब जो एप्लीकेशन है वो तो एक्सेस कर सकेगी, लेकिन वी डोंट वांट अदर्स टू एक्सेस दिस डाटा. ये होता है यूजुअली कि प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं डाटा के ना. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड इट इन कैन ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस, ताकि सिर्फ जो इस एप्लीकेशन के थ्रू यू आर एबल टू एक्सेस दैट डाटा. एक मिनट, सॉरी, ये इसका जो डेटा है इसका कहीं पे एमआरआई हुआ होगा और एक सीडी बनी होगी. अच्छा, ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको ये उसका नहीं है. ये किसी ये जो हमारी रिसर्च कम्युनिटी में जो डाटा सेट पड़े हुए हैं ना, ये रॉ वॉल्यूम पड़े होते हैं, तो ये वहां से रॉ वॉल्यूम लिया गया है. तो ये वो सीटी या एमआरआई जैसे आखान वगैरह देती है, ये वो नहीं है, लेकिन उससे भी बनाया जा सकता है. उससे भी बनाया जा सकता है. देखिए मैं तो एप्लीकेबिलिटी देख रहा हूँ ना, एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी इसकी पाकिस्तान में और हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में क्या होगी ना, वो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिकली किसी का भी सीटी स्कैन का डेटा है जो एक जगह पर सिक्योरली पड़ा हुआ है, और उसको आप जो ये मॉडल बता रहे हैं वो ये है कि इसको ब्राउजर में उसको 3D में विजुअलाइज कर सके. बेसिकली आपका पार्ट वो है ना? जी. अच्छा, ठीक है, ठीक.
जी बस चले, समझ में आ गया। आई थिंक बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत इसकी बहुत वाइड एप्लीकेबिलिटी है। जी। मैं और इसका आप लोग को अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, मेरा ऑपरेशन हुआ था आगा खान में थायराइड का। तो मैंने अपना भी डेटा से जो मुझे सीटी इन्होंने दी थी ना, तो मैं अपने डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि यार कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक खा रहे हो इस वजह से तुम्हें फील। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ है ना, देयर इज समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग इन माय थ्रोट। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा सर मुझे सीटी स्कैन दे दे, मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने कहा चल चलो ठीक है, तसल्ली के लिए कर लो, लेकिन कुछ है कुछ नहीं। बहरहाल तो फिर मैंने सीटी स्कैन करवाया अपना, और मैंने अपने विजुअलाइजर में डाल के आई एक्चुअली रिकॉर्डेड दिस ऑन माय स्मार्टफोन, और मैं लेके गया था डॉक्टर के पास, और मैंने उसको दिखाया था। तो ही वाज लाइक वाओ, तो आप ये चीज हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी किसी के पास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जो आपके हाथ में है, और आप जी इसको बहुत गोल्ड माइन मैं तो कहूंगा, और पाकिस्तान के लिए भी, आपके लिए भी, जी। कि इसको ये किया अभी मैं जा आपको सकता बता रहा है। हूँ सर, ये दिस इज प्रोबेबली द स्टेट ऑफ द आर्ट राइट नाउ। अभी तक इससे अच्छा किसी ने नहीं बनाया हुआ। नोबडी इन द एंटायर वर्ल्ड हैज डन दिस, क्योंकि हमारे ग्रुप के ही पेपर है इसमें, और इसमें ये ओपन फील्ड है, अभी कोई भी काम नहीं हुआ इसके अंदर। एनालिसिस डालेंगे, डेली गुड गुड पब्लिकेशंस इन दिस। तो पेटेंटिंग के भी चांसेस हैं, पब्लिकेशन के भी चांसेस हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप बताएं पॉन्डर अलायंस, अच्छा अब आपका खत्म हो गया प्रेजेंटेशन, जी 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 तो जी जी अब आप बताएं पॉन्डर अलायंस क्या कर सकते। जी जी। ख्याल जो और कोई सवाल अगर किसी के हैं तो वो भाई पूछ लें। फिर मैं जो सपोर्ट की मैंने बताया, जैसे 2 एरियाज हैं जिसमें मैं सपोर्ट चाह रहा हूँ। पहला तो जो अगर मैथमेटिकल इमरजेंसी वाले की बात करें तो उसके अंदर तो, क्योंकि अब मैंने आपको बताया जैसे कि उसमें कन्वर्जन करना, दैट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क। सिर्फ ये सिंपल सी चीज नहीं है, इसके पीछे मैंने देखा ये कोई 4 साल या 5 साल से बनाई है इन्होंने, लीनियर अलजेब्रा वाली जो किताब है। इट टुक 5 years टू मेक फॉर दीज पीपल, ये 3 लोग जो हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी, वही कहने की बात है ना कि 3 लोगों ने मिलकर बनाई है इसके ऊपर, इसके बावजूद दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट। सो सिमिलरली अगर हमें कोई इस तरह का इंसेंटिव करना होगा तो वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और कंसिस्टेंट एफर्ट होगा। चैट जुनैद साहब, दिस इज नॉट पब्लिक। आई डोंट थिंक यू वन साइट जिसके ऊपर जहाँ का आप लोग वहाँ पे इसके सिमिलर चीजें, लेकिन उसमें सरफेस रेंडर की हुई है, मैं दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेट मी फाइंड इट आउट, आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये वो मॉडल नहीं है जो मेरा मॉडल है, ये दिस लाइक समथिंग सिमिलर दैट यू कैन यूज। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है भी सवाल। हाँ जी, ये मिल गया। अच्छा, ये जो है आई एम एक्चुअली शेयरिंग वन लिंक। ये 3JS एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर यू कैन नजर नहीं आ रहा है मुबीन साहब, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो अच्छा रही है। मैं शेयर करता सॉरी। अच्छा जी, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, ये आप लोग लाइव विजिट करके देखें। ये एक सिटी स्कैन का डाटा है जो कि इस 3JS फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें इन्होंने सरफेस रेंडरिंग की हुई है, दिस इज डिफरेंट मॉडल जो कि विजुअलाइजेशन का होता है। ठीक है, तो आप इसमें वही एक सूडो सरफेस लगा के सिटी स्कैन को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज, तो यू कैन एक्चुअली सी दिस। ये जो आपने अभी ब्राउजर बेसिस की बात की थी, ये इसको हम लोग जनरली बोलते हैं आइसो सरफेस रेंडरिंग, ये इसमें ये की हुई है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था कंपोजिट रेंडरिंग थी, जो मेरा अपना एल्गोरिथम है। तो आई होप जुनेद साहब आपको जवाब मिल गया, यू गेट द आंसर।
So are there any other questions? जी Muhammad Tabassum has a question. जी go ahead please. Miss Uma, go ahead please. असद साहब उनको अनम्यूट कर दीजिएगा. अच्छा मैं अनम्यूट कर देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? जी. जी सर, आपका मतलब काफ़ी अप्रिशिएबल है जो आप काम कर रहे हैं. एक दो चीज़ें मेरे जहन में हैं. सर देखिए, आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आप ब्राउज़र बेस्ड कर रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग. द थिंग इज़ कि जो जब कोई भी इस तरीके से स्कैन है, CT स्कैन, MRI व्हाटएवर, तो ज़ाहिर है कि वो डिफरेंट व्यूज़ के साथ एक्सियल व्यू, सैजिटल व्यू, जो भी जिस तरह से भी उसकी हुआ है उसके सारे स्प्लाइसेस हो जाते हैं केस वाइज. तो द थिंग इज़ कि जो भी वो क्या कहना चाहिए कि जो डिवाइस है, जो मशीन है, जो MR की, जो CT की, तो उसके साथ ही एक उसका अपना एक एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर होता है. तो जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली कर रहे होते हैं, दैट इज समथिंग कि वो उसी के ऊपर व्यू करते हैं और फिर वो उसको जो भी उन्होंने रोटेट एंड एवरीथिंग उसको एनालाइज कर लेते हैं. तो जो जितना जैसे अब आजकल कोविड वगैरह भी है और जो भी है, तो द थिंग इज के हो ये रहा है कि जो भी स्कैन किया जाता है, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मतलब वहीं हॉस्पिटल में, अपने वार्ड में, अपने ऑफिस में बैठ के करें. सो इट्स जस्ट अ CD एंड दे इंस्टॉल इट ऑन देयर लैपटॉप और व्हाटएवर, ठीक है. और वो या तो CD डिलीवर हो जाती है, या मे बी इवन के अक्रॉस सिटीज भी ये काम होता है कि मतलब वो ईमेल कर देते हैं और वो उस चीज़ को वो पूरा व्यू कर लेते हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और जो आप भी बात कर रहे हैं कि वो मे बी बोन की डेंसिटी को मतलब कि जैसे कि उसकी वो थोड़ी सी कुछ कंट्रास्ट एंड एवरीथिंग एडजस्ट करके, क्योंकि बाय कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट भी ये स्कैन्स किए जाते हैं. तो मतलब आप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तो फिर आपका जो ये काम किया है आपने, तो इज लाइक आर यू ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इन योर ब्राउजर थिंग, और या फिर दूसरी चीज सर ये है कि आई एम सॉरी मैं आपसे सारे सवाल पूछने फिर आप आराम से जवाब दे दीजिएगा. दूसरी चीज सर ये है कि जो आप इसकी बात कर रहे हैं, डेटा सेट मिलता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि जाहिर है कि उसके साथ एसोसिएटेड कुछ आपके मतलब नेम, एज, जो भी आपके डेमोग्राफिक्स होते हैं. तो जब आप हॉस्पिटल्स को हम लोग कांटेक्ट करते हैं, तो यूजुअली वो इन चीज़ों में इतने विलिंग नहीं होते हैं वो अपना डेटा शेयर करने में. और अगर हम जैसे बात करते हैं, तो अगर हम जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज हैं, वहाँ पे जो हमारे पास कुछ डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, कुछ US के, कुछ NH के, तो उसके में आपके स्पेसिफिक अगर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर उसका मिल रहा होता है. तो आप जो बात कह रहे हैं, सो लाइक हम तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट देन अगेन मतलब आप कुछ इसमें डायग्नोसिस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या इट्स लाइक कि अभी आप सिर्फ विजुलाइज करने तक रखेंगे? देखिए, अभी तो दो सवाल हैं आपके. पहला तो था कि जी जब ऑलरेडी टूल एग्जिस्ट करता है CT MRI के अंदर, तो क्या जरूरत है हमें काम करने की, हम उसी को, यही सवाल है ना बेसिकली, ठीक है. सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आप उसको मतलब ब्राउजर पे सिर्फ मतलब उस सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ. देखिए, उस सॉफ्टवेयर में तो जो मॉडल लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि उसमें कहाँ है, क्योंकि हर किसी का प्रोप्राइटरी है वो. मतलब अगर आप जी की बात करें या अगर आप किसी और सीमेंस की बात करें, उनका अपने विजुलाइजर अलग है, ठीक है. ये जेनेरिक है, जेनेरिक इन द सेंस के जो स्टेट ऑफ द आर्ट में अभी तक जो एग्जिस्ट करते हैं, वो उससे अगले अगले लेवल पे जो चीजें, जो कि प्रॉब्ली आपको शायद CT MRI में वो चीज मिलेंगी नहीं कभी, ये इसमें रहते हुए आप वो चीजें बना सकते हैं. वो एक समझ ले को इट्स लाइक ए फिक्स थिंग, यू कैन नॉट चेंज इट. उसके एल्गोरिथम्स को, उसके जो मॉडल्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ये तो हम जिस तरह चाहें वी कैन एक्चुअली अडैप्ट इट लेटर ऑन आल्सो. अभी भी नहीं, अभी एक मॉडल बना हुआ है, बाद में हो सकता है कोई नया मॉडल बन जाए, विजुअलाइजेशन का मोड चेंज कर दें और एडिशनल चीजें डाल दें, एनोटेशंस डाल दें, जो चीजें के उसके CT स्कैन की जो मशीन है उसके ऊपर जो है वो तो एक फिक्स ही व्यू रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होना. इसमें तो आप जैसे मेरा आइडिया ये था कि नॉट ओनली कि हम सिर्फ एक विजुअलाइजेशन दे सकें, इसको एज अ लर्निंग टूल के तौर पे यूज कर सकें, जिसमें डॉक्टर्स अपने व्यूज अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग कि इनको क्या लगता है कि क्या चीज है, क्योंकि उनकी टर्म्स डिफरेंट होती है ना, तो एवरीवन कैन देन एनोटेट स्ट्रक्चर्स और बता सके कि ये चीज जो हो रही है इसकी वजह ये है, एंड सो ऑन. समझ आ रही है बात?
तो इट्स नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन की एलिमेंट सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो चीज बनी हुई जो मेरे पास एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है मैं वो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू एक्चुअली गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, ये तो बेस लाइन है बेसिकली, समझ ले। वही जो कि होता है ना कि बंदा सिर्फ बातें करे और कुछ दिखाए नहीं, कहते हैं ना कि भाई सिर्फ बातें ही हैं कुछ दिखा नहीं। तो ये वो चीज को बताने के लिए कि इट्स नॉट दैट कि मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज मैंने बनाई हुई भी है, दिस समथिंग रनिंग दैट आई कैन शो ऑल ऑफ यू टू यू। ठीक है, तो इसलिए वो चीज दिखा रहा था, दिस इज नॉट कंप्लीट बाय द वे। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका क्या था? ऐसे डेटा सेट्स के हवाले से। हाँ, डेटा सेट्स का सबसे बड़ा मेजर मसला मेरा यही है, डेटा सेट मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैंने आखिर में भी बात की थी, मतलब अनलेस के देयर इज समवन एल्स टू हेल्प, हाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर आगे टाइम ही नहीं मिला ना। मैं कोविड के जैसे मैं भी नहीं गया आगे, वो लोग भी उनकी तरफ से भी नहीं हुआ। तो जो अडॉप्शन और उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो यही कह रहा हूँ कि आई कैन एक्चुअली हैव सम एक्सेस टू डाटा सो दैट वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट ऑन आवर लोकल डाटा सेट्स। ये मुझे भी नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो अभी जितने भी मॉडल जो भी हम बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जो पब्लिक डोमेन में डाटा है मैं उसी को देख के बना रहा हूँ, उसी से बना रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे लेके चलना चाहते हैं? तो मुझे आपकी बातों से दो चीजें शायद समझ में आ रही हैं। एक तो शोइंग दिस टू द डॉक्टर्स जिनका ये एरिया है, उनको ये दिखाने की जरूरत है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, टू जनरेट द इंटरेस्ट। ठीक है, देन सेकंड पार्ट इज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, जो फंड्स एंड टीम और ये सारी चीजें, द सेकंड पार्ट। अच्छा, जो हुमा का सवाल है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारी चीजें बनी हुई होंगी लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, तो हम मेड इन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, रिपीट कर रहे हो, सारा कुछ ले रहा हूँ, बट वी वुड लाइक टू डेवलप। उसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, लोग भी डेवलप होंगे और वो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये हमें इन एनी केस अगर वो एप्लीकेशन है तब भी हमें करना चाहिए। सर रेप्लिकेशन नहीं है ये, तो एग्जिस्ट नहीं नहीं करती। अगर होगी तब भी हम करेंगे। ये तो है ही नहीं। जो मॉडल ये लगा हुआ ये तो है ही नहीं। जो उधर मॉडल लगे हुए हैं वो बेसिक किस्म के हैं। कोई जीई की मशीन जो हमारे यहाँ है इम्पोर्टेड, वो काफी पुरानी है। आई डोंट थिंक किसी के पास नई मशीन है जिसके अंदर के जिन्होंने सिनेमैटिक रेंडरिंग की हुई है। ठीक है, तो एक चीज हो सकती है कि कुछ डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जिनसे दोस्ती हो। वैसे तो आप जाएंगे तो शायद कोई रिस्पांस नहीं देगा, सारा कुछ है। तो इस अभी तक जो हमारे पास हुमा अनम्यूट का कह रही है सर, हुमा अनम्यूट का कह रही है। अच्छा, अनम्यूट कर लूं, खुद नहीं हो पा रही है। चलिए मैंने अनम्यूट कर दिया। इसमें देखें नीचे ऑप्शन होगा आपकी मीटिंग में ना, अलाउ पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट। जी सर। सर मैं कतई ये नहीं कह रही थी कि मुबीन साहब रेप्लिकेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वो एक चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो दैट कैन बी समथिंग कि जिससे हम एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम उसको एक अपनी गाइडलाइन बना सकते हैं कि दिस समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन दैट एंड व्हाट कैन वी इंट्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर जो भी जिस मशीन होती है ना वो उसके साथ ही वो होता है, इट हैज एन अबंडेंस ऑफ फीचर्स। उसमें बहुत काम है, बहुत सारी फीचर्स उसमें ऑलरेडी होती हैं कि जिनको यूज करते हैं रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली। तो हम उसको कर सकते हैं। मैं कतई मतलब उनके काम को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ और ना मैं ये कह रही हूँ कि वो कर रहे हैं। मतलब प्लीज गलत ना समझिए। नहीं हुमा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई थोड़ी बात है ऐसे। चलिए हुमा, हम कोई मतलब गलत नहीं समझ रहे थे, बस हम चले आगे चलते हैं इस पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुबीन साहब, अब टीम कैसे बनेगी? शुड वी टॉक टू द वेरियस यूनिवर्सिटीज जिसमें ग्राफिक कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि जो आपको कुछ लोग चाहिए इस तरह के जिनकी ये वाली? मेरे ख्याल में सर, मेरे ख्याल में ना, मेरा बताने का मकसद ही ये था कि जिनका इंटरेस्ट बने ना, आई वांट पीपल जिनका इंटरेस्ट बने वो आए, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ होगा तो फिर बात बनेगी। मतलब फोर्सफुली किसी को लेने में मजा नहीं आएगा। हुमायूं साहब प्लीज गो अहेड। जी चलिए, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। चलिए जी, मोहन साहब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, मैं कह रहा था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आई थिंक फाउंडर अलायंस के लिए नई चीज होगी, हम कर तो सकते हैं। बेसिकली हम एक कोई इवेंट करें इसी तरह का छोटा, उसमें 7 8 10 डॉक्टर हम सबके जान पहचान दोस्त
उनको इसमें इन्वॉल्व करें। ऐसे डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल्स चला रहे हों फॉर एग्जांपल, उनको बड़ा विजन होता है, एक छोटा विजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ टेक्निकल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक प्रोडक्ट पाकिस्तानी बन रहा है। तो ऐसे लोग हों जो कि लविंग, कंट्री लविंग हो, और उनके पास डोमेन नॉलेज भी हो, और वो ये MRI वगैरह का किसी हद तक समझते हों। तो मेरे मेरे अपने कुछ रिश्तेदार हैं और मैं जानता हूँ जो कि बहुत दिलचस्पी लेंगे इसमें। तो इस तरह से हम सब लोग एक एक दो दो डॉक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें, और इसी तरह एक सैटरडे को सेशन करें जिसमें वो सब के सब शरीक हो जाएं, और फिर वहाँ पर आप अपनी बात रखें मुबीन साहब, ताकि फिर ये उससे आगे बढ़ेगा, फिर टीम बनेगी। अभी अगर आप पॉन्डेलाइंस देखें तो देखें हमारे पास हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इस वक्त दिलचस्पी नहीं है, लोग नहीं आए हैं। ये भी कोई चीज बनेगी चलेगी तो लोग आते चले जाएंगे। जी ये बिल्कुल ठीक है। चलिए तो मेरा ये सजेशन था कि इस पे आगे काम कर सकते हैं। हाँ, दरखास्त करूंगा मुबीन साहब से कि ब्राउजर बेस्ड विजुअलाइजेशन पे थोड़ा सा हम बना लें कि अगर एक सीटी स्कैन, ताकि डॉक्टर को समझा सकें, हम जैसे लोगों को भी समझा सकें। मैं समझ गया। सीटी स्कैन हो गया और ये इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया, तो प्रॉब्ली मोर फोकस। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, हाँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा बनाया था। अभी मैं आप लोग को दिखा भी सकता हूँ, एक सेकंड मुझे, मैं शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने ये पूरा प्रपोजल लिखा था, और जो प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव का एक आया था कि जी आप लोग अगर कोई सबमिशन करना चाहें, लेट मी शेयर इट, एक सेकंड ना। तो बेसिकली उस टास्क फोर्स के लिए मैंने ये बनाया था डॉक्यूमेंट। और हाँ, तो फिर हम शायद किसी सैटरडे को एक मीटिंग कर लेते हैं, और मुबीन साहब और मैं भी और हुमायूं साहब भी जो इंटरेस्टेड डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक सेशन कर लेते हैं, 5-6 डॉक्टर्स हो जिनका इंटरेस्ट, एंड देन मूव फॉरवर्ड आई गेस। चलिए आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं दिखा रहा हूँ, वो मैं ओपन करके देख रहा हूँ, जिसमें मैंने ज्यादा एलैबोरेट करके दिया था पूरा। ठीक है। उसमें पूरी चीजें जो एक्चुअल चीज थी वो पूरी बताई थी। एक सेकंड, डॉक्यूमेंट किधर गया? ये बेसिकली लोकल चैलेंज फंड के लिए मैंने डालना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं, एक सेकंड, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? किधर गया? हाँ जी, नजर आ रहा जी डॉक्यूमेंट? जी 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 जी। तो ये बेसिकली मैंने बनाया था, ये बेसिक पूरी डिस्क्रिप्शन है, जिसमें कि पूरा मैंने एंड टू एंड बताया था कि MRI स्कैन से कहाँ जाएगा डाटा, जो इन्होंने बात की थी ना, डाटा कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई है डायग्राम्स के साथ पूरी। ये तो उनके सर के ऊपर से गया होगा, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो हाँ, ये वो वाली चीज है कम्युनिकेशन की, के दूसरा वाला किस लेवल का है, और आपका प्रोजेक्ट जो जा रहा है अप्रूवल के लिए, ये भी एक एरिया है हमारा जो हमारे एकेडेमिया को लर्न करना है। मैं खुद सोच रहा था कि इसके ऊपर एक सेशन करें हम, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि किस तरह से किया गया, एक्सपीरियंस अपना बताऊं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये अगर आप असद साहब कह रहे हैं जो हम डॉक्टर्स आएंगे हम उनको दिखाएंगे, तो वो बिल्कुल उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपको एक वर्किंग चीज दिखानी होगी, स्लाइड्स दिखाने होंगे स्लाइड्स के तौर पे, और मैं भी, आप इतने अच्छे एनिमेशन अच्छी बना लेते हैं आप, तो आप उस तरह से करके दिखाएं कि देखें पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो फिर वो उसकी समझ में आ जाएगा। जी बस वही है कि पहले तो वो था ना कि बताना, कि लोगों को ऐसा समझ नहीं आता ना कि क्या है, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरी ये टॉक थी कि भाई ये है बेसिकली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, बहुत अच्छा, आपका विजन भी अच्छा है। तो एक तो ये मेडिकल वाला हो गया ना, ये इमेज प्रोसेसिंग का, जिसमें विजुअलाइजेशन आपका जो सेकंड पार्ट था, तो इस पे हम अगर सब अग्री कर रहे हैं तो कर लेते हैं। मैं और असद मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक सेशन और करेंगे, आपको बता देंगे। उसमें डॉक्टर शरीक होंगे, और क्या डॉक्टर ले लेंगे उसमें, और उसमें PA के और मेंबर्स भी शरीक हों, जो लोगों को इंटरेस्ट है आज तशरीफ लाएं, और लोगों को भी साथ लाना चाहें तो जरूर लाएं। बेसिकली इसको जनरलाइज करें तो ये विजुअलाइजेशन का टूल है, वेब विजुअलाइजेशन की तरफ। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मेरी जो इंटेंशन इसमें है ना, वो सिंपल वही है, सर्विंग दी नेशन वाली बात है, सीधी सी बात है। मैं इसमें कोई पैसे नहीं बना रहा है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर ऐसा होता तो मैं सिंगापुर से वापस ही नहीं आता।
ठीक है। probably ये और भी टूल्स अच्छी बात है सर, बहुत भी अच्छी बात। इसके हमने जो उधर काम किया था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, वहाँ पे पूरा एंड टू एंड पूरा टूल बना के दिया था उनको LSTM डाटा सेट के लिए, लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल एंडो माइक्रोस्कोप का, जो कि मेरे ख्याल प्रॉब्ली सिंगापुर के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, और शायद अमेरिका में, 3 जगह पे, और कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। तो उसमें भी इस तरह की चीज इंटीग्रेट की थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीजें हम हमारे लोकल नीड के हिसाब से अडेप्ट करें और यहाँ बनाएं, यहाँ करें। क्यों नहीं कर सकते हम? जब अगर वो बाहर से बनी हुई चीज आ रही है, हम उसकी चीज को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? अब एक सिंपल एक और आपको बताऊं प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ के स्कैन्स में है, वो स्कैन्स का रेजोल्यूशन बहुत कम है। लेटरल और जो सैजिटल और कोरोनल जो बताया ना, रेजोल्यूशन बहुत कम है। तो हम इसको खुद ही जनरेट कर सकते हैं ना, यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग और AI। हम जनरेट कर सकते हैं डेंसिटीज, जो मिसिंग डेंसिटीज है बीच में, और काफी कंटिन्यूस आपको डेंसिटीज दे सकते हैं। तो बीच की वेरी जो गुड। स्पेशल रेजोल्यूशन है वो बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये वो काम है जो कि करने चाहिए हमें। तो वही है, अच्छा तो पहले स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह और चीजें समझ आएंगी और चीजें नजर आएंगी। अच्छा, जी जी, मैं बोले बस सर। दरख्वास्त करूंगा कि हम मूविंग फॉरवर्ड को ये स्टेप ले लें। तो मेरे ख्याल से मेरी दरख्वास्त है मुबीन साहब से कि इसको डॉक्टर बेस्ड, यानी हम समझ लीजिए कि अगर हम 15 दिन बाद कुछ डॉक्टर्स को, हुमायूं साहब कुछ मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो जी उनको जी, कॉन्सेप्ट, यानी जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाए समझ उनको आ जाए। शायद मोर फोकस करना है कि भाई ये देखिए एक सीटी स्कैन है और ये आपने लेके जी जी उसको किस तरह से मॉडलिंग करनी है। तो 15-20 मिनट में इंटरेस्ट डेवलप जी करना है जी डॉक्टर्स का फ्रॉम वेरियस जी, प्रोमिनेंट हॉस्पिटल। बस ये काम हम 15 दिन बाद एक कर ठीक लेते है, हैं। तो ठीक इज दैट एग्रीड विथ ठीक ऑल है, हुमायूं साहब? ठीक है मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि कुछ कर लें ना, ताकि डॉक्टर्स का इंटरेस्ट आ जाए, फिर कहीं हम प्रोजेक्ट शुरू करें और फिर जी टीम की बात कर रहे हो। तो अभी जी जी जी, मैथमेटिक्स को बिल्कुल मैं ठीक इसलिए है। रोक रहा हूँ कि उसमें हमारी कैपेसिटी लग नहीं रही कि गवर्नमेंट से बात करके और ये सब, अब मतलब उसमें थोड़ा सा ना नहीं हमारी नहीं, गवर्नमेंट से मसल्स, बात हाँ, करना नहीं था सर। नहीं नहीं, गवर्नमेंट से बात करना नहीं था। मतलब मेरा टीम मकसद ये चाहिए, नहीं है, देखिए 5 साल का गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट चाहिए, गवर्नमेंट के पैसे ऊपर तो, तनख्वाहें। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको उस तरह रखना है कि जिसपे मिनिमम, कहते हैं ना, मिनिमम फाइनेंस में होते हुए, मतलब इसीलिए तो मैंने बोला ना, जिसमें इंटरेस्ट हो वो आए। तो इंटरेस्ट के लिए ये सही, होता है कि बंदा फिर लगा होता है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। और ये नेशनल इनिशिएटिव है मेरा अपना, कोई मुझे इससे फायदा सही, कुछ नहीं हो रहा सही, है। ये सही। गवर्नमेंट को, मुल्क को, कौम को फायदा होगा अगर आप उसको पूरे कंटेंट को, जो हमारे पास बुक्स की फॉर्म में है, जिसकी कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है, आप उसको एक इंटरेक्टिव कन्वर्ट कर दो फॉर्मेट में, एंड देन यू कीप इट फ्री। मतलब इसके क्या सही, होगा कि फायदा ही होगा, लोग पढ़ेंगे तो समझ में से लोगों को आ जाएंगी चीजें, बेहतर हो जाएंगी चीजें, और क्या। तो हाँ, ये कोई भी बिल्कुल इसमें ठीक। ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए मैं कोई, मैंने वही चीज रख रहा हूँ जिसका कि मकसद ये है कि इवेंचुअली आई वांट टू इम्प्रूव द जनरल वे ऑफ एजुकेशन, बस ये है। एजुकेशन ठीक है। तो अब इट उसमें, कैन बी थ्रू, इट्स नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट इसमें कूदेगी तो, या गवर्नमेंट के पास हम नहीं तो जाके इसमें पैसे क्या मांगे, चाहिए? ऐसा इसमें कभी भी नहीं होगा सर। मैथ्स के टीचर चाहिए हमें सपोर्ट, या क्या? हाँ, मतलब ना सिर्फ ये कि मैथ्स के टीचर्स, ताकि वो हमें बता सके कि हमें क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है। हम पूरी जो चीजें नहीं बना, लेकिन बहुत सारी किताबों में चीजें होती हैं जो नहीं पढ़ाई जाती। सही, तो सिर्फ वही चीजें उनसे स्टार्ट करें एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर, 2, 3, 4, और फिर उन्हीं को मॉडल करके फिर एज अ कहते हैं कि एक मॉडल के तौर पर हो जाए, ताकि हम एक शोकेस कर सके कि जी ये दिस वाज व्हाट वी डेवलप सही। इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते पूरा एक बुक को या पूरे सिलेबस को। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि जी बहुत अच्छा आइडिया है और इसको आगे ले चलते हैं, लेकिन सवाल है कि जी ये जो टीचर्स हैं, ये इस वक्त बहुत सारी साइट्स हैं, मैंने अभी आपको एक रेफरेंस दिया है, जी जी और जी पिछले तो इसमें इसमें सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है, इसके जी में बड़ी अच्छी ग्राफिक्स हैं, ये जी फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस, जी और जी जी उसमें मैथ्स के पीछे एल्गोरिदम्स होते हैं, यही जो आप कह रहे जी हैं ना, जी जी इक्वेशंस जी, होती हैं उसके पीछे बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर देखें, अगर ये टीचर्स ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है, जी पॉइंट जी, ये है कि आपने एक किताब बताई जो 3 साइंसदानों ने 3 साल में बनाई है, हाँ और वो वेक्टर्स पढ़ाती है। अब जी वो एक जी, वेक्टर जो है पूरी मैथ्स का एक पूरा एक सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट है। 1% है, समझ लें। हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, अब आप अगर मैट्रिक साइंस में आए तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और उसके अंदर फिजिक्स के अंदर आए तो हीट भी है, साउंड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और जी 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 थर्मोडायनेमिक्स है, और क्वांटम भी अब आ गई है, जी तो मैकेनिक्स है पूरी। तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा बड़ा काम है, तो इसका मतलब या जी तो कुछ बनी हुई लाइब्रेरीज हो, ये जी कोलोराडो यूनिवर्सिटी के 2-3 जी 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 प्रोफेसर ने बनाई है, वो आखिर में वो पूरी कंपनी बन गई है, वो वहाँ भी जी वो जी फ्री करते हैं, फ्री डाउनलोड है।
PHP में है मेरे ख्याल से, या जावा में इनकी कोडिंग, जावा है जी, और वो डायरेक्ट है, आपके मोबाइल पे भी चलती हैं, आप उसी वक्त चला के दिखाएं। तो आजकल के हमारे जो टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे हर जगह अच्छे टीचर्स भी हैं, सब टीचर्स ऐसे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी, वो ये सब यूज करते हैं। उनकी अपनी एक छोटी लेबोरेटरी है, उनके लैपटॉप पे होती है, वो वहाँ पे अटैच करते हैं और बच्चों को ना वहीं का वहीं वीडियो दिखाते हैं, वहीं का वहीं, और अपनी क्लास के ऊपर बॉल रखते हैं, पेंडुलम रखते हैं और इधर समझा रहे होते हैं एंड सो ऑन। तो मैंने कहा कि उनको हम ना यूज करें एज अ मॉडल, ऐसे टीचर्स को, और ऐसा जो फ्री सॉफ्टवेयर है अवेलेबल है उसको हम यूज करें टू टीच मैथ्स, बजाय इसके कि हम एक नया हम कहें CDF फॉर्मेट में बनाएं, CDF फॉर्मेट में किताबें बनाएं। या आपको याद होगा हमारे साथ अपना इसमें ऑनर अलायंस में वो खातून है डॉक्टर फरिया, क्या नाम है, वो भी ये कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स बनाई हैं, इंटरैक्टिव बुक्स। अच्छा। हाँ, क्या नाम है? डॉक्टर फरार, डॉक्टर फरार, उनका डॉक्टर फरार, ये लम्स की हैं, उनकी पूरी कंपनी है, वो बड़ी कोशिश कर रही हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं उसको मार्केट करने की। अच्छी खासी उनकी पहले प्राइस ज्यादा थी, अब कम भी कर लिया उन्होंने, लेकिन वो वही है कि वो नया मटेरियल बनाना है, उसके डोमेन एक्सपर्ट चाहिए और वो बड़ा मुश्किल काम है। जी सर, ये जूनियर साहब का पहले सवाल ले लें, उन्होंने हाथ रेस किया हुआ, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये मैं देख रहा था विंडोज में, एक विंडोज 10 में एक 3D व्यूअर का सॉफ्टवेयर कोई होता है। जी। तो आप ये जो आपने जो मुझे लिंक दिया, ये ओपन सोर्स है या ये भी कोई खास फॉर्मेट पे होता है? ये भी ओपन सोर्स है 3JS में। 3JS बड़ा एक स्टैंडर्ड वो है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिस जो आप ब्राउजर बेस्ड रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो विंडोज में दिया हुआ है ना, ये बेसिक 3D मॉडल डिस्प्ले करता है, वॉल्यूम विजुलाइज नहीं करता। वॉल्यूम विजुलाइज नहीं करता? वॉल्यूम विजुलाइज जो CTMRI के लिए जो हमें चाहिए होता है ना, वो वॉल्यूम विजुलाइज चाहिए होता है, मतलब बीच में इंटरसेक्शन वगैरह। हाँ, बीच की जो डेंसिटी है वो सारी डिस्प्ले करनी होती है, वो नहीं दिखाता है, उसी सरफेस दिखाता है। तो ये जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो CT स्कैन के जो डाटा मिलता है जी, इज इट ऑल वर्ल्ड वाइड? मतलब हाँ, डाइकॉम, हर कोई डाइकॉम यूज करता है। डाइकॉम स्टैंडर्ड है इनपुट आउटपुट का ना। तो आपको जो ये देते हैं ना, आपको आगा खान वाले जो CD देते हैं, उसके अंदर भी डाइकॉम का व्यूअर साथ होता है और डाइकॉम की फाइल दी हुई होती है। राइट, ठीक है, तो आप उसको निकाल सकते हो उसमें से डाटा। ठीक है, अच्छा जी, हमारे साहब आपका सवाल था कि जी अगर ऑलरेडी बनी हुई है और टीचर कुछ यूज कर रहे तो हम उनको क्यों नहीं यूज करना, हम अपना क्यों बनाए। देखिए, मसला ये है कि वहाँ की जो एग्जांपल दी हुई होती है ना, वो सारी तर मेजरली जो एग्जांपल्स होती है ना, वो उन लोकल उसके एस्पेक्ट से दी हुई होती है। ठीक है, मेरा आइडिया ये था कि वी कैन एक्चुअली अडेप्ट, लर्न फ्रॉम देम। अगर वो यूज हो रही है तो यूज करें, लेकिन उसमें लोकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको भी शामिल करें। ये था जो सॉफ्टवेयर, गुड पॉइंट। मैंने कहा देखो, फैट की जो सिमुलेशन है, जैसे उसमें वो रॉकेट दिखाते हैं, तराजू दिखाते हैं, सीसो, स्लाइडर, पेंडुलम, गैस हीटिंग है। तो अब इसके अंदर आप उर्दू डाल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री अवेलेबल है। जी आप उसमें उर्दू में उर्दू कन्वर्ट डाल करते हैं, सकते हैं। लैंग्वेज, हाँ, आप उसमें कर सकते हैं। आप वो लाइब्रेरी अपने पास लाएं, जिसको जावा आती है वो उसको चेंज करके, और उसका जो पिक्चर आएगी उसमें उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा। जी, अब ये देखें ना, ये सिंपल ये चीज थी कि हमने एक चीज ली, अडेप्ट की अपने हिसाब से और उसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया ना। अब ये मैं इस काम में भी आपको लोग चाहिए होंगे ना, अकेले तो नहीं कर सकता आप, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। जी, ठीक है, इसी तरह बाकी से स्टार्टिंग के तौर पे कहना चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअल मेरा मकसद यही है कि जो हमारी आगे जो एल्गोरिथम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स में जो लाइब्रेरीज हम लोग यूज करते हैं ना, भले ही चाहे हम C++ में बना रहे हैं, मैटलैब में यूज कर रहे हैं, मैथमेटिका में बना रहे हैं, C# में बना रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम बना रहे हैं ना, तो उसकी हमको एक जनरल लेवल पर, हमारे पूरी एटलीस्ट सिटी लेवल पे नहीं तो मतलब अपने लेवल तक की एक रिपोजिटरी बन जाए। तो रिपोजिटरी का फायदा ये होगा कि बाकी लोग भी, अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या कोई अगर अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसमें से लाइब्रेरी में से फंक्शंस ले ले, उसको यूज कर ले अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई उसमें ट्वीकिंग करता है, चेंजेस करता है, तो पुश भी करता है हमारी रिपोजिटरी में भी। तो आइडिया ये है कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज बेस है ना, जितने भी हमारे पास वर्किंग सोल्यूशंस है, वर्किंग लाइब्रेरीज हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में काम किया हुआ हो, उसका हमारे पास एक कलेक्शन मौजूद हो, एक रिपोजिटरी मौजूद हो, जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज हो सके और जिसको भी हम अप्लाई भी कर सके इन इंडस्ट्री लेवल जॉब्स।
अभी ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी हर बंदा अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपना काम करता है, फिर वो दफन हो जाता है उसके पेपर के साथ या उसके प्रोजेक्ट के साथ। मोरलेस यही है। तो शेयरिंग नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ कि शेयर हो और एक चीज इम्प्रूव हो ओवर द इयर्स। चलिए मेरे ख्याल से हम दोनों चीजों को देख लेते हैं एज ए अलग अलग प्रोजेक्ट। और मेरा ख्याल है कि अभी हम डॉक्टर्स वाला मुझे ज्यादा वो लग रहा है कि इसमें शायद अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग तो फिर हमें थोड़ा सा उसको प्रोजेक्ट को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी नीड है ना, मार्केट के अंदर एक नीड है जी। तो शायद वो नीड को देखते हुए फाइनेंस टीम और ये सारी चीजें बन जाएगा। तो उस पे फिर नेक्स्ट 15 दिन के बाद फिर हम एक सैटरडे को कर लेते हैं, अगर आप लोग सारे एग्री करते हैं तो फिर हम डॉक्टर्स को बुला लेते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर देखते हैं उनका इंटरेस्ट आता है। मेरे ख्याल में सर पहले उनसे एंगेज करके देखें कि रिस्पांस क्या आता है। तो अभी हम पहले से कमिट करते हैं, बंदे इंटरेस्टेड ना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल बड़े, मतलब मुझे तो काफी मुश्किल हो रही है ट्रैक करने में, डॉक्टर्स को पकड़ में नहीं आ रहा है आजकल स्पेशली सही कह कोविड की वजह से ना। दे आर एक्चुअली क्वाइट रिलक्टेंट। वो कहते हैं भाई यार उधर ही रहो, बेहतर है। नहीं हम वीडियो मीटिंग कर लेंगे अपना, ये अपना जूम मीटिंग कर लेंगे दिखा के। हाँ ठीक है, देखें। नहीं, एक जूम मीटिंग करें। जूम मीटिंग में आधा घंटा 1 घंटे में इतना ही टाइम होता है उनके पास। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे पाकिस्तानी भी हैं। तो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे हम। ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे जो कि इंटरेस्टेड हो और नेचुरली उनका वो। आप लोग भी ऐसे ही लोगों को बुलाएं, मैं भी ऐसे ही लोगों को बुलाऊंगा। फिर देखते हैं भाई, उसी में से निकलेंगे लोग, और क्या। हम करेंगे तो आगे चलेंगे ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही, ठीक है। तो हो गया फिर ये जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन। बहुत आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत जबरदस्त आपने किया। आपने सबने मेहनत की। हम लोग तो बैठ के जबान हिला रहे हैं इसके। नहीं कोई नहीं, ये कीमती आ रहा है, काम है। कीमती आ रहा है सबकी सारी, मतलब ये नोटिस कर रहा हूँ, सारी चीजें नोट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच उमैर साहब, थैंक यू सो मच असद साहब, उमर, जुनैद साहब एंड नूरीन, थैंक यू सो मच ऑल। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। असद साहब कोई बात तो नहीं करनी? बस ये कि नेक्स्ट 15 डेज में डॉक्टर्स को जरा ज्वाइन करवाना है कि भाई देख लीजिए, ताकि फिर हम मुबीन साहब से एक सेशन करवा लें और देखते हैं लोगों का इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से तो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी। कहने यार दिखाओ, अब बात सारी है ना कि वो प्रपोजल से, आपकी बात सही है कि प्रपोजल से समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिखाओ है क्या, तो जरा दिखाएं और सवाल जवाब ले लें तो प्रॉब्ली विल सी द इंटरेस्ट आई गेस। इसी तरह सैटरडे को सुबह का ठीक ही है टाइम, मेरे ख्याल से 11 बजे तक लोग उठ जाते हैं। जो उठने वाले तो खैर पहले से उठे होते हैं, लेकिन जो नहीं उठने वाले वो 11 तक उठ जाते हैं। हाँ सही है। मेरा तो दोबारा से सोने का टाइम है 11 बजे। सही है, ओके, सही है। अच्छा भाई, जज़ाकल्लाह सब लोग। थैंक यू वेरी मच। हुमा, आपसे बहुत अच्छा रहा, आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जुनैद भाई, अरे सर नौरीन, सो ग्लैड टू हियर एवरीबॉडी हियर। बहुत अच्छा सर, असल में मैंने थोड़ा सा इस चीज के ऊपर काम किया एक जमाने में किया था काम, तो मुझे अंदाजा है कि क्या परेशानियां होती हैं, लेकिन ज़ाहिर इस लेवल का नहीं किया था। और ज़ाहिर सर अकेले इस चीज को आगे ले जाना इतना आसान होता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही है भाई। हम IoT कर रहे हैं ना, हमें 4था साल है और किसी की अब तक समझ में ही नहीं आया, नहीं समझ में आता। तो बहरहाल ये भी वही चीज है कि भाई एक दफा आप करेंगे फिर एकदम सब उसकी तरफ चलने लगेंगे फिर इंशाल्लाह। तो सक्सेस क्रिएट करवानी है, सक्सेस क्रिएट करवानी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके सक्सेस इंशाल्लाह ताला। चलिए देखिए, अल्लाह ताला ने बरकत दी तो मुबीन साहब जैसे लोगों को यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।